जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की बहुत प्यारी संगत जोगा चीमा आंटी जी हमारे साथ हैं। आंटी जी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए और गुरु जी के महिमा, गुरु जी के सत्संग से हमें ब्लेस करिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत, thank you Guru ji for letting me share your beautiful satsangs. Thank you Nisha aunty. जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानण होंदिया गुर बिन कोर अंधार. In our lives, we always need a guru, whether it's our parents, our teachers, or our ultimate spiritual guru. बहुत घट लोकां ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਇਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ. I was asthmatic since the age of 3 and I was on very high dose of steroids, nebulizers, inhalers, intravenous injections, all through my childhood. बहुत मुश्किल से I would spend my days, I could not play. बिल्कुल normal childhood नहीं था मेरा. And school भी ऐसे जाना होता था maybe 3 or 4 months in a year. बाकी time छुट्टियां होती थी या मैं hospital में होती थी. So yes, in 1994, my brother took me to Guruji in Jalandhar, and it was such a beautiful experience. Guruji अपनी गद्दी पर बैठे थे Jalandhar में. I still remember he was wearing a beautiful red chola, and संगत बहुत कम थी. जैसे ही I went and उनको मत्था जैसे मैंने टेका, मेरी तरफ देख के कहते आगे जतिंदर कौर. So, being human, मैंने कहा हाँ, my brother must have told him my name. जरूर गुरुजी को मेरा नाम बताया होगा. पर बाद में जब मैंने अपने ब्रदर से पूछा तो वो कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो भूल ही गया आपका जो पेपर पे नेम है, क्योंकि everybody calls me Joga. So even then I did not understand how Guruji knows my name. उस टाइम कुछ गुरुजी ने ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਰੂਜੀ ਨੂੰ. We thought ਬਹੁਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ, he cures people. But we did not realize कि Guruji is the creator himself. इस यूनिवर्स दे नहीं, सारे यूनिवर्सेस दे महाशिव हैं. सानू बिल्कुल भी गुरुजी ने पता नहीं लगन दिता. So उस दिन तो बाद I never ever got a asthma attack. It's been now 30 years. बहुत बख्शिश है गुरुजी दी सब ते, मेरी फैमिली ते, मेरे ते. So many things. गुरुजी हमेशा कहंदे सी अपना सत्संग सुनाना. मीन्स के जो साडे नाल एक्सपीरियंस होए हैं असी ओही सुनाने हैं. And short रखो. He always said short रखो. So yes, जिवें हुक्म होएगा गुरुजी दा ओवें सत्संग करांगे. So as then Guruji told us कि तुसी आंदे रहना.
we started going to Jalandhar, my family, my husband, both my boys, we started going to Guruji. और बहुत ही गुरुजी ने सानू प्यार दिता। मेरे डैड भी जांदे सी, बहुत शरदा नाल we all would go. And one day my brother was told by Guruji कि पान दे पत्ते लेके आओ 51 rupees दे, मैं थोड़े डैड दा ऑपरेशन करना है। So we could never ever question Guruji भी क्यों करना है, की है, nothing. So हाथ जोड़ के my dad said जो हुक्म हजूर। So my brother went and got the leaves and Guruji ने उन्ना दे पेट ते रखे and he said okay जी ऑपरेशन हो गया। So असी वापस we all came back to Chandigarh. And after 3 days, on the third night, my father passed blood in his urine and he was taken to the hospital and the doctor said कि bladder wall de upar another there's a growth, the operation hona immediately. So my dad was operated upon and a growth which was as big as a tennis ball was operated. And dad didn't feel anything earlier. और उस तो बाद डॉक्टर सेड कि अब तो जी इनको we have to operate him every 3 months, for a year, then every 6 months next year, and every year as long as he lives. That time Guruji wasn't in Chandigarh or Jalandhar. He was in Rajasthan. So we couldn't get in touch with him. But within a month or so, Guruji came back and he said, क्यों मैं ऑपरेशन करता ना? सी क्या हाँ जी हजूर, thank you जी. So next time when my dad was operated upon, the growth was as small as a pea. बहुत छोटी सी growth थी और उसके बाद बिल्कुल ही नहीं हुई. My father lived till the age of 99 and a half. With Guruji's blessing, he had a very healthy life. So my asthma was cured, my dad's cancer was cured. ऐसे करके हमारी फैमिली में जो भी किसी को प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने धीरे धीरे सबको बिल्कुल गुरुजी कहंदे सी मैं पहला सेहत ठीक करदा, मैं अंदरों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜਦਾ, means he cleanses our inner self, our soul. So Guruji je sehat theek hoegi tahi you will be a happy person, and that's all Guruji's bakshish. That's I can't explain. So ऐसे धीरे धीरे हम गुरुजी के पास जाते रहे and we would go to Jalandhar and तब संगत बहुत थोड़ी होती थी and गुरुजी अपने हाथों से he would give the pulkas, the roti prasad he would give with his own hands. And one day my bhabhi was also with us and she used to get migraines since she was 5 years of age. And उस दिन उसको migraine हो रही थी and Guruji gave her 2 chapatis. She ate them with, when you're having migraine, you don't feel like eating, पर उसने खा लिए. And फिर गुरुजी आए, उन्होंने 2 और चपाती दे दी. So she ate one and kept one in her handbag, which nobody noticed. And we went back to Chandigarh. So next time when we came to Guruji, he said, क्यों भाई ठीक हो? He says, Guruji कदी कदी हो जाता है. So Guruji said, ओ जेड़ी पर्स च पाके ले गई सी ना फुलका, ओ उरे खा लेंदी तो बिल्कुल ठीक हो जाना सी. So that is the day we got to know कि Guruji's langar prasad
is the divine prasad. We did not know that before. And that was Guruji's way of teaching us that this is what I give you in the Sangat is the divine prasad. So like this we kept going again, and sometimes it used to be winter, and the road was single in those days. Now we have a GT road. Earlier it was single road, and उन दिनों में टेररिज्म भी काफी था. तो हम रात को गुरुजी हमें 1:30 बजे छुट्टी देते, 2 बजे एक्सक्यूज 2 बजे छुट्टी देते, एंड इनवेरेबली हमारे गाड़ी के आगे एक वाइट छोटा सा ट्रक लग आ जाता था, और उसकी लाइट्स को फॉलो करते करते हम चंडीगढ़ पहुंच जाते थे. वंस ट्वाइस थ्राइस वी सेड, एक बार बच्चे कहते वी आर गोइंग टू सी ये कहाँ जाता है ट्रक. बट एवरी टाइम जब हम चंडीगढ़ पहुंचते थे तो हम बातों में इतने बिजी हो जाते थे कि हम भूल ही जाते थे ट्रक को देखना. चंडीगढ़ के बाहर आते ही वो ट्रक गायब हो जाता था. देन वी रियलाइज्ड कि दिस इज गुरुजी's गाइडिंग अस. वी हैड नो क्लू अर्लियर, but then we realized कि Guruji is guiding us right till our house. So Guruji की संगत, one thing is very important, that when we attend a satsang, we must go straight home. क्योंकि Guruji कहंदे सी ਇਹ blessings ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ. Do not stand outside and gossip. Just go straight home with all the blessings. But as we are social birds, we start meeting everybody and asking everybody, "Kaise ho? Kaam kaisa hai?" Ye wo. We are not supposed to. We should just come to the satsang with an empty mind, fill up our mind with our soul with blessings, and go straight home. Very simple. गुरुजी की टीचिंग्स कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं. गुरुजी ने हमारे लिए हमारा स्पिरिचुअल पाथ इतना सिंपल बना दिया है. We have no, I mean, he's finished all the वहम. जितने हमारे मन के वहम हैं वो सब खत्म किए हैं उन्होंने. कोई वो तो इतना भी कहते थे कि कर्म जो आपका है, इफ यू आर डूइंग गुड कर्म, कॉन्शियसली आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, देन पाठ भी कोई जरूरत नहीं होती. बट यस, वी डू नीड टू डू द पाठ, बिकॉज गुरुजी ने सबको जो ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया है, वी मस्ट डू दैट. But that is Guruji's evaluation of our soul, that if we are doing good karma every day, not hurting anyone, we are already becoming pure. So, like this one day, our younger son, he had an exam, and we went to Jalandhar, and he said, "Guruji, मेरा एग्जाम है." So he says, अच्छा पेन है? Guruji can, my son said, hanji. So he gave him his pen, and Guruji blessed it, and our son stood first in the region in that exam, which he wasn't even expecting to get through. So this is Guruji's power. We actually, जब गुरुजी अपनी physical form में थे, we could not understand his mightiness, his जो गुरुजी हैं हम बिल्कुल समझ नहीं सके. But still his blessings were always there and are always there. And now that he's not in his physical form, अब तो blessings ज्यादा हो गई हैं और बहुत संगत इसीलिए बढ़ गई है कि गुरुजी used to say कि लाइना लगणगीਆਂ ਮੈਨੂੰ टीवी 'ਚ देखा करोगे तुसी, स्क्रीन ते देखा करोगे,
And we always thought, yeah, there'll be big sangats and all, but we never thought Guruji chale jayenge. That is, yeah, that is very, very, whenever we think about it, कि हमने कितना अच्छा time spend किया गुरुजी के साथ, उनके चरणों में इतने, I mean, such beautiful time we spent with him. We really miss him so much. कदी गुरुजी ने कहना चरना दी सेवा करो. Beautiful, soft, like cotton, like silk. His lotus feet were like that. His hands, so soft, so beautiful. And उनके shoulders, उनकी बाजू इतनी soft होती थी. We can't even explain what kind of a body Guruji had. It was, and इतनी अरोमा, इतनी खुशबू आती थी. हाथों को जब हम या चरणों को सेवा करके घर जाते थे, तो even if we washed our hand, 2-3 दिन खुशबू आती रहती थी. And we didn't want to wash our hands when we went home because we wanted कि गुरुजी की खुशबू आती रहे. So yes, sometimes Guruji would call and he would say, मैं गुरुजी बोलदा, telepathy नाल करदा. So we used to wonder, phone would ring, but Guruji के पास तो phone नहीं होता था, and sometimes he used to be traveling. So in those days we didn't have cell phones, and telepathy say he could ring our phone. Well, Guruji can do anything, but these were few things that Guruji made us and showed us that he is not a normal human being. He is God. He is the creator himself. धीरे धीरे गुरुजी के, फिर गुरुजी चले गए, पंचकूले आए थे, है ना? Yeah, he came to Panchkula, which was so nice for all of us, and it was really very nice. And my husband had a audio recording studio. He used to, this is long time back, and it was one of the first studios in North India, and he needed some machines, which in those days was a big problem, because if you imported something from another country, uska procedure बहुत लंबा होता था. So one day my husband asked Guruji that he needed these machines. So Guruji ने कहा, ठीक है, आप ये कर लो. पता नहीं क्या बोला था, क्या? हाँ हाँ, संगत के लिए कुछ करो. So ये recorder, CD, recorder, cassette of shabads for the sangat. So वो किए इन्होंने और गुरुजी ने सब में बांटे. And then after a month or so, my husband asked again कि गुरुजी मशीन ना, कहने हाँ आ गया. Now we were wondering, we haven't talked to anybody. हमने किसी से बात नहीं की बाहर जहाँ से मशीनें आनी है, कैसे आ गई. पर गुरुजी का हुक्म is always पत्थर पे लकीर. And soon enough एक बंदे का फोन आया. He said, मैं स्विट्जरलैंड से बोल रहा हूँ, and you have a studio in Chandigarh. My husband said yes. He said, I'm coming to India. Do you need such and such machines? So my husband said yes. So with Guruji's bakshish, वो मशीन ने वो बंदा ले आया
who was working in the same company from where my husband wanted the machines, और हमें पता भी नहीं, we didn't get in touch with that person, we didn't even know about him, but Guruji made him get in touch with us. And then my husband said, okay, these are very, very expensive machines. I am talking about in 90s की बात कर रही हूँ मैं, early 90s. So at that time they cost 20 lakhs of rupees. And my husband said, well, immediately I don't have the cash. So that person said, कोई बात नहीं, you give it to me in installments. अब मेरे को बताओ, ये गुरुजी की बख्शिश के बिना कौन कर सकता है कि बाहर से मशीनें आ रही हैं without any license and all, and ये तो these are such small things, but गुरुजी ने हमारी जिंदगी को ऐसे ही संवारा है. He would always call our boys अमरीकनो, आ गए अमरीकनो. Then ਜਦੋਂ आज्ञा देनी हुंदी सी, चलो भई अमरीकनो. So we used to wonder, because they were still in college and school, and we used to wonder, अरे अमेरिका में कहाँ जाना है इन्होंने, इधर ही रहेंगे. But both our boys are in North America. One is in California, one is in Vancouver. So ये गुरुजी की बख्शिशें हैं. Only thing is, गुरुजी सिर्फ हमें कहते थे कि अपनी अकल जुत्तियां नाल बाहर ला के आओ और सरेंडर करो. I understand कि surrendering is the most difficult thing for a human being. But if we surrender, then he takes care of everything. He is the one who takes care of everything, and then we don't have to bother. Because अगर हम गुरुजी के को सरेंडर कर देते हैं कि हर सांस आप ही की है, सब कुछ आपका है, then he will take care. अगर हम कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, ये मेरा है, ये nothing is ours. जो भी हमें दिखता है वो नाशवान है. सिर्फ एक गुरुजी है who is going to be there and has been there and will be there. So many other satsangs. Sometimes I forget. 1 minute, I'll just check. Which else should I share, Ji? Sorry. Yeah, one more satsang. We in Chandigarh we had 4 dogs. 3 were very big Tibetan Mastiffs and 1 was small. So the vet would come home instead of us taking them in the car, which was very difficult. So vet would come home after 2 months and check them up and all. So one day the vet came and he was, looking very sad. तो मैंने पूछा, बेटा क्या हो गया? He says, aunty, मेरे father-in-law बहुत बीमार हैं and last stage of cancer है and AIMS Delhi में he is admitted, and he said कि मैं और मेरी wife जा रहे हैं यहाँ से सीधा दिल्ली. So I said, where is your wife? वो तो कार में बैठे हैं बाहर. So I ran out to her. I said, what happened? So she started crying. मैंने कहा, आप मेरी एक बात मानोगे? She says, aunty, at this time, मैं कुछ भी मानने को तैयार हूँ. So I came in. गुरुजी अपने हाथ से अपने स्वरूप देते थे छोटे छोटे. So we had quite a few.
And I went inside and got one for her. I gave it to her. I said, you know, being a sick girl, she didn't really believe in anything else except Guru Granth Sahib, which was okay. And I said, put this under your dad's pillow or keep it in his pocket. So she said, okay, I will do that. तो वो चले गए. कुछ दिन निकल गए, मैंने भी नहीं पूछा, उनका फोन भी नहीं आया. हम दिल्ली गए तो Empire State, and after the satsang, a tall gentleman comes towards me and मेरे सामने झुकने से लगे. मैंने कहा no no no, Guruji is sitting there. He says नहीं, गुरु को मिलाने वाला भी बहुत ऊंचा होता है. मैं क्या जी, I'm sorry, मैंने पहचाना नहीं. So he said, I'm so and so's father. I said, oh अच्छा, फिर आपका ऑपरेशन हो गया, आप ठीक हो गए. He says, जी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ. My daughter, कहते मुझे तो पता नहीं, मैं तो बहुत, he was in a bad shape. He says, मेरी तो बहुत बुरी हालत थी और 3 दिन मेरी हालत बहुत खराब रही. पर उसके बाद ये देखो, ही कॉलर को एक साइड में करके उन्होंने दिखाया, उनकी नेक में ऐसे डेंट पड़ा हुआ था, जैसे आइसक्रीम नहीं हम स्कूप कर लेते वैसे. तो मैंने कहा अच्छा, फिर ये यहाँ ऑपरेशन हो. ही सेज, जी नहीं, मैं बोल नहीं सकता था, मैं सुन नहीं सकता था, मैं मेरा सारा जो ये कैंसर है वो ब्रेन में जा रहा था. पर गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया, विदाउट ऑपरेशन ये मेरा डेंट हो गया. I was very surprised and of course grateful to Guruji. And मैं तो बहुत हैरान हुई, सब के सब हैरान हुए. गुरुजी की बख्शिश इतनी ज्यादा कि विदाउट ऑपरेशन that person was cured within 3 days. And वो कौन कर सकता है? The Creator. Only He can do. No one else can ever think कि इतना कुछ हो भी सकता है. एंड एम्स के जो डॉक्टर हैं बहुत सारे, वो गुरुजी के पास आते थे. सो दे ऑफ कोर्स सेड यस, ये तो मिरेकल गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स केप्ट हैपनिंग. एंड गुरुजी तो सिर्फ ही जस्ट वांटेड के, ही वाज जस्ट फुल ऑफ लव. सबको सिर्फ प्यार 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 ही देते थे. हम सबकी गलतियां सब माफ करते हैं वो. वी आर ह्यूमंस, वी अभी भी हमें कभी गुस्सा आ जाता है, कभी हम किसी को अपने मन में बुरा कह देते हैं. बट मन में भी बुरा नहीं कहना किसी को, किसी की निंदा नहीं करनी. जैसे गुरुजी के अंदर से निंदा नहीं करनी, बिल्कुल भी चुगली नहीं करनी किसी दी. And we think gossiping is the fashion, which Guruji strictly forbade us. And चावल भी कहते घट खाओ, चीनी भी घट खाओ. And गुरुजी ने बहुत 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 बख्शिश की थी. My son, who's in Vancouver, he applied for a job here in the police and in the correction, as a correctional officer. He appeared for the exams हो गए, he got through. तो इंटरव्यू के लिए गए तो वो कहते भी आपने एग्जाम कैसे दे दिए, आपके पास तो अमेरिकन एक्सपीरियंस, कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने how did you appear for the exams? He says, well, in my application I'd written everything, but I was still told to take the exam. So they said, sorry, we can't take you because you need Canadian experience. So कहते ठीक है. But after some time, the same people called him. They say, sorry, this is federal rule.
मीन्स के सेंटर का रूल है कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो थोड़े दिनों के बाद फोन आया, कहते आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द जॉब? So my son said, yes, of course. So he says, you come over. He says, but I haven't got any Canadian experience. So कहते, we don't need. The federal government has changed the rule. अब मेरे को बताओ भी कौन फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का रूल कौन चेंज कर सकता है? सिर्फ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत बातें ऐसी हैं कि एट द मोमेंट वन जस्ट कांट रिमेम्बर, एंड सो मेनी थिंग्स। एक रिक्वेस्ट मैं सारी संगत से करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज गुरु जी का जो स्वरूप है ना, वो इतना प्योर, इतना, क्योंकि गुरु जी ने खुद बोला था कि मेरे स्वरूप नाल गल करोगे कर दे हो तो मैं हुन्ना। We have got the technology now in our hands and we keep writing on Guruji's स्वरूप। गुरुजी का स्वरूप लेके हम इनविटेशन भेज देते हैं। Can we just write जय गुरुजी? Everybody will understand कि गुरुजी का सत्संग है। या गुरुजी के बारे में हम जो भी लिखते हैं अपनी मर्जी से मत बोले, हम जो उनके पवित्र वर्ड्स हैं सिर्फ वो ही हम कोट करें। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गुरु जी के स्वरूप आप इमेजिन करो, आप भगवान के स्वरूप के ऊपर लिख रहे हो अपनी मर्जी से, या उसकी कोट, उनके कोट अपनी, you are quoting him with your own words. This is, I feel very pained, very hurt, and ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी संगत बहुत बहुत, गुरुजी ने कहा था कि संगत बहुत प्यारी है मेरी, और हमें भी बहुत बहुत प्यारी है संगत। सो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज गुरुजी के स्वरूप को ट्रीट इट एज गुरुजी, डोंट ट्रीट हिज स्वरूप एज अ पिक्चर। सो I think for today it is, मैं यहाँ पे अपना सत्संग खत्म करती हूँ। सबको गुरुजी सब सारी संगत की झोलियां खुशियां से भरें, सबके सिरों पे मेहर भरे हाथ रखें। May गुरुजी bless you all and thank you very much गुरुजी इस सत्संग करवाने ਲਈ। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू आंटी, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट on your video, because I think I don't know about the Sangat who has joined here, but I want to see you. I'm an old lady, beta. I'll just put it on. Hanji. Jai Guruji. जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी आंटी जी। आप हमें भी दिखाओ निशा जी कौन है। मैंने ऑन किया आंटी जी। जय गुरुजी आंटी जी। कहाँ है शो? जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी आप भी 2 लाइनें या जैसे आपको लगे आज मतलब आप भी थोड़ा सा शेयर करें प्लीज।
जय गुरु जी वैसे तो अंकल। सारा कुछ योगा जी ने बोल दिया है। कोई नहीं फर्स्ट अंकल, गुरु जी ने थोड़े आपको सुनवाना है मेरे वो बात। एक्सपीरियंसेस तो वही रिकॉर्डिंग वाले ही थे जो एक्चुअली जो मेरे वो रिकॉर्डिंग वाला जो था उसमें ऐसा हुआ था कि जलंधर हम जब जाते थे तो अ, मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि मुझे ऐसी मशीनें चाहिए और एक्चुअली आई डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज, पैसे देने के लिए रिसोर्सेज इतने नहीं थे। और मैंने कंपनी से पहले कांटेक्ट किया था तो वो कहते जी ओके वी कैन गिव यू दिस, बट इसके लिए आपको बैंक में एलसी खोलनी पड़ेगी, उसके ऊपर ड्यूटी आप देंगे, जो भी करेंगे, वट एवर ऑल द फॉर्मेलिटीज। तो गुरुजी ने मुझे जब मैंने पहली बार बोला उनको तो गुरुजी ने मुझे कहा, उसका जवाब ही नहीं दिया उस बात का। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप संगत के लिए कुछ रिकॉर्ड कर दो। तो मैंने सोचा कि ये कैसी बात है कि मैं कुछ कह रहा हूँ और वो कुछ और कह रहे हैं। एनीवे थर्सडे के थर्सडे नॉर्मली बुला रहे थे हमको, तो थर्सडे को हम फिर गए। वी यूज्ड टू रीच इन द मॉर्निंग, से अबाउट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, और शाम तक, रात तक वहाँ थे। तो सेकंड टाइम मैंने फिर बोला तो उन्होंने बोला कि वो रिकॉर्डिंग हो गई। तो मैंने कहा गुरुजी क्या करना है रिकॉर्ड? तो उन्होंने नाम लिया, कहते सुखी विराट आंटी हैं, उनको आप बोलो, उनको पता है क्या रिकॉर्ड करना है, तो उनकी रिकॉर्डिंग आप करके संगत के लिए। सो मैंने सुखी विराट आंटी के लिए से बात करी। उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं 2 महीने बिजी हूँ बिकॉज पंजाब के कोई इलेक्शन चल रहे थे एंड शी यूज्ड टू डू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। तो मैंने कहा चलो। उसके बाद फिर अगले थर्सडे वही बात हो गई। मैं पूछूं, वो कहें जी वो तो एक बार फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ। मैंने क्योंकि अपने म्यूजिशियंस थे, अपने राइटर्स वहाँ थे, सारा कुछ था, तो उनको रिक्वेस्ट करी कि आप अगर कुछ कर सकते हो ऐसा, एंड मतलब कि गुरुजी की उस्तुति में कुछ लिखना है। तो वो करवा के मैंने कैसेट वहाँ हम ले गए। उन्होंने चलाई कैसेट एक बार, दैट्स इट। आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, बट एक बार मैं उनकी गद्दी के साथ उनके राइट हैंड साइड पे नीचे बैठा था। तो अचानक मेरी तरफ, मैंने पूछा नहीं कुछ भी, मैंने बोला नहीं कुछ भी, अचानक मेरी तरफ घूम गए और बड़ी कर्टली बोला मुझे, हाँ 10 की गल है। तो थोड़ी देर के लिए तो जरा बंदा घबरा जाता है, क्या हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी वो मशीन ना। सो उन्होंने मुझे बताया क्या करना है। उन्होंने कहा 5.25 किलो गुड़ गौशाला में दान कर दो मंगलवार को और मशीनें ले आओ। अब मैंने सोचा कि 5.25 किलो गुड़ दे के मशीनें कैसे आ जाएंगी। तो खैर हुक्म था, पता नहीं था ना कि गुरुजी का जो कहना है वो एक लकीर बन जाती है पत्थर पे भी। तो मैंने किया। ये बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली जब मैं सोचता हूँ तो वो ये नहीं था कि वो गुड़ देने से ही वो मशीनें आनी थी। इट वॉज कि उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आई हैड टू डू समथिंग। जैसे पहले रिकॉर्डिंग करी थी, सो आई हैड टू डू समथिंग। तो वही बात हुई कि जहां मैंने पहले कंपनी से रिक्वेजिशन करा था कि ऐसा ऐसा इंटरेस्ट शो करा था, वहां से कॉल आ गई मुझे डायरेक्टली। और वो मतलब मुझे कहने लगा कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड वुड यू शोड इंटरेस्ट इन द मशीन्स। आई सेड यस। अब जब ये बात हो रही थी तो मेरे मन में आने लग गया कि अब ये बोलेगा कि ऑर्डर प्लेस करो, ये करो, वो करो। तो मैंने सोचा कि क्या बोलूं इसको मैं। तो मैं कुछ हेजिटेट करने लग गया। ये वो कहता है जी, पंजाबी बोलने लग गया। वो कहता है जी मैं तो पंजाबी भरा। और
मेरा पिंड जलंधर दे कोल दा है एंड मैनू दसो गल की है। सो थोड़ी सी हिम्मत बनी तो मैंने कहा भैया बात यह है कि इस वक्त पैसे नहीं है। तो वो कहते स्टूडियो है आपका? स्टूडियो है जी। अच्छा मैं इंडिया आ रहा हूँ व्हाटएवर एक हफ्ते बाद एंड मैं मिलता हूँ आपको। वो आए, मिले, उनके साथ बात हुई, लंच वंच हुआ, सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने मुझे सारा कुछ देख दुख के उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग बैक वीकेंड एंड मैं आपसे बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। एक रात को मतलब वहां यूरोप में दिन होगा, उस वक्त शाम होगी, तो रात को मुझे फोन आया कि जी आप जरा नोट करो कि एयर फ्रांस की फ्लाइट नंबर सो एंड सो जो यहाँ से इतने बजे चलती है वहां इतने बजे पहुंचती है, उस पर हमने 2 मशीन्स लोड करवा दी हैं, आप उनको रिसीव कर लो। नाउ दैट वाज समथिंग अनहर्ड ऑफ कि इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं इनके लिए, सब कुछ होता है, हाउ कैन इट हैपन? एंड ऑल आई हैड टू डू वाज ऑर्गेनाइज द इंपोर्ट ड्यूटी। चलो हो गया, मशीन्स घर पे आ गई and I had not paid a single rupee for that. अब गुरुजी को बताया कि जी मशीनें आ गई। कहते हाँ ओके, और आएंगी, और मशीनें आएंगी। Then I realized कि और मशीनें का की मतलब है। Now इसी इसमें 2 चीजें हैं। what I came to realize later, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना मंगो ना मन्नो। मैंने मांगा, पर मैंने मांगी 2 मशीनें, उन्होंने मुझे दी बहुत सारी ज्यादा, उसी कंपनी की इतनी ज्यादा मशीनें आई मेरे पास कि मैंने कभी सोचा नहीं था। सो वो उससे मुझे ये पता चला कि अगर मैं ना मांगता तो मुझे इतना देने वाले थे वो, जितना मुझे बाद में दिया उन्होंने। सो नहीं मांगना, नहीं तो क्या होता है कि मैं मांग लेता 2 मशीनें, उनका लैब भी 2 मशीनें लैब, और ना मांगता तो सारी मशीनें आनी थी। सो ही डिड दैट, बट ही मेड मी रियलाइज के ये नहीं करना। मुझे पता है आपको क्या देना है, मुझे पता है आपको क्या चाहिए। सो दैट वाज द रियलाइजेशन आई हैड, क्योंकि वो मशीनें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आई रैन दैट स्टूडियो फॉर 30 इयर्स एंड उसके बाद कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन पे, हमने उसको बंद कर दिया और खत्म किया स्टूडियो को, एंड वी हैड टू मूव टू कनाडा। तो वो हुआ ऐसे कि मैंने सोचा ये मशीनें जो हैं इनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, बेच देते हैं। Although they were not digital, they were analog format machines, but they were so good, उनकी क्वालिटी अभी भी ज्यादा अच्छी है डिजिटल से। So I tried to sell them, एक भी उनमें से मशीन नहीं बिकी, एक भी। और अभी पीछे ऐसा हुआ था, मैं किसी को ऐसे ये सत्संग सुना रहा था, तो एक there was a young girl sitting and listening to me, और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो मुझे बाद में लगी कि यार ये बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने कहा अंकल जी मैं ये सोचती हूँ कि आपको वो मशीनें बेचने का सोचना ही नहीं चाहिए था जो गुरुजी ने आपको दिया। सो देन आई रियलाइज कि वाकई बात ठीक है, आई शुड नॉट इवन थिंक अबाउट दोज थिंग्स। एंड आई नो वन थिंग कि जब नेक्स्ट टाइम आई गो टू इंडिया आई विल गेट दोज मशीन्स हियर एंड आई विल स्टिल बी यूजिंग देम। सो ये ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। एंड एक बार तो ऐसा उन्होंने कर दिया, मुझे बोला कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है, तो रिकॉर्डिंग एक लाइव परफॉर्मेंस हो रहा था सत्संग उसमें संगत में एंड पंचकूला में जनरल आहूजा जी के घर पे। तो वहां पे उन्होंने बोला कि आप रिकॉर्ड करो इसको। मैं अपना पोर्टेबल इक्विपमेंट वगैरह लेके चला गया वहां पे, एंड देयर उनका जो साउंड सिस्टम वाला बंदा था, ही सेड के नहीं आपकी जरूरत नहीं है, हमारे पास है सारा कुछ, आई रिकॉर्ड इट। तो मैंने कहा ठीक है भाई, गुरुजी को मैंने बोल दिया कि वो कह रहे जी मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा। अब सारा प्रोग्राम हुआ, रिकॉर्डिंग उन्होंने करी, और
उसके बाद जब लंगर सर्व शुरू हो गया तो गुरुजी ने बोला उनको भी वो लगाओ टेप जो आपने रिकॉर्ड करी है। अब जब टेप लगाई इट वॉज टोटली ब्लैंक, मतलब कोई रिकॉर्डिंग है ही नहीं उसमें। वो कभी फॉरवर्ड करे उसको कैसेट को, कभी रिवाइंड करे, कभी उल्टी करे, कभी सीधी करे, मतलब उसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। सो मेरे ब्रदर इन लॉ जोगा जी के ब्रदर बैठे थे उनके गद्दी के पास ही, तो उन्होंने गुरुजी को बोला भी गुरुजी ये क्या हो गया? तो गुरुजी ने कहा रिकॉर्डिंग तो चीमे तो करानी है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ थोड़ी करानी है, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ करावांगे। So now that was something कि how do you stop a machine from recording, you know? खैर उस टाइम तो समझ नहीं थी, अब पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। You know, you can break all the laws of this world, जैसे हम जो नेचुरल लॉज वी आर यूज्ड टू फिजिक्स और ये और वो और ऐसा और ग्रेविटी, सब कुछ उनके हाथ में है। ही इज बियॉन्ड ऑल दिस। हम सारी उम्र समझते ही रहेंगे। हमें इतनी देर हो गई है, सिंस 94 इतनी देर हो गई है, अब भी हम कई चीजें समझ रहे हैं कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया। दैट वाज, I mean, amazing things have happened and even they are happening even now. अभी भी हो रहा है सारा कुछ। हमारे मन में आती है बात तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक दिन दो दिन में वो पूरी हो जाती है। अब बोलना भी नहीं पड़ता किसी को। खैर उन्होंने कहा है कि स्वरूप के आगे बात करोगे तो मैं सुनता हूँ आपकी बात। हम करते हैं, शुक्राना करते हैं, ज्यादातर शुक्राना ही करते हैं कि आपने जो किया है वो थैंक यू वेरी मच गुरु जी फॉर दैट। एंड दिस इज आई मीन इट्स अमेजिंग कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं और बहुत छोटी छोटी चीजें भी होती हैं विच एंड और बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें भी होती हैं बिकॉज हमें पता ही नहीं है और वाकई मांगना नहीं चाहिए। क्यों कि हमें पता ही नहीं है क्या मांगना है। अगर पता हो तो बंदा मांगे, तो वी डोंट नो, हमें अपनी डेस्टिनी का पता ही नहीं है। गुरुजी को तो आगे पीछे सारा ही पता है, नॉट ओनली दिस लाइफ टाइम, मे बी अदर लाइफ टाइम्स ऑल्सो। सो मतलब हमें ये कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, बस शुक्राना और ध्यान और श्रद्धा पूरी। एब्सोल्युटली दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। मुझे हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है, हमारे बच्चों को भी उनकी भी पूरी श्रद्धा है, सारा कुछ है। एंड वी एंजॉय द कीर्तन। उन्होंने कहा ऐश करो, तो ऐश ही कर रहे हैं जी, हम ऐश ही कर रहे हैं बिकॉज सब कुछ तो वो कर रहे हैं हमारे लिए। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। थैंक यू संगत जी। मैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस बट गुरुजी ने मेरे मन में डाल दी बात कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग। एंड नॉर्मली आई डोंट टॉक, मुझे मेरे से बात नहीं होती है, बट आज पता नहीं कैसे सारा कुछ बोल दिया। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। थैंक यू। जय गुरु जी आंटी। Better Nisha ji, could you send me the recording of this? Yes aunty, of course I'll send you today or by tomorrow. No, whenever you're free, no problem. ठीक है? Okay, thank you aunty. Jai Guru ji. Okay. Jai Guru ji beta, bless you, bless you. May Guru ji bless you all. Jai Guru ji. जय गुरु जी। संगत जी सब आगे लेंगे म्यूट करते हुए, शुक्राना गुरु जी का करते हुए आगे लेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आज्ञा दो गुरु जी।